सुरेश गोपी को त्रिशूर सीट से चुनाव जिताकर केरल में बीजेपी का खाता खोलने का क्रेडिट दिया जा रहा है। सुरेश गोपी के लिए पीएम मोदी की कृपा शुरू से ही बरसती रही। बेटी की शादी में शामिल होने से लेकर चुनाव जीतने के लिए पीएम मोदी ने केरल के कई चक्कर लगाए। चुनाव जीतने के बाद सुरेश गोपी को कैबिनेट में शामिल करके एक और कृपा की, लेकिन अब सुरेश गोपी ने ऐसा घुमाया बीजेपी और मोदी को कि सब हैरान है। I, Suresh Gopi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. राज्य मंत्री की शपथ लेने के कुछ घंटे बाद ही सुरेश गोपी ने मोदी कैबिनेट में मंत्री बने रहने से मना कर दिया है। मांग की है कि कैबिनेट से रिलीव किया जाए, मतलब जो मंत्री पद दिया गया है उसे वापस लिया जाए। एक्टिंग से राजनीति में आए सुरेश गोपी ने कहा कि उन्हें और फिल्में करनी है, मंत्री नहीं रहना। सुरेश गोपी त्रिशूर के सांसद वाली ड्यूटी तो पूरी करते रहेंगे, बस मंत्री पद छोड़ने की जिद पकड़ी है। केरल के टीवी चैनल्स को इंटरव्यू में सुरेश गोपी ने यहां तक दावा किया है कि उन्होंने तो मंत्री पद मांगा भी नहीं था। केरल से दिल्ली आते समय भी उन्होंने इशारा किया था कि वो शपथ के बाद ही बोलेंगे। Congratulations, sir. Remember, I also went to the show to cover you. Okay. I'll take some regarding this. I have to go to the dinner. Take 1 Just minute. 2 minutes. Yeah. Sir, so how do you see this today, the celebration? Today's celebration is only a kickoff. So there are lots of things to be revealed. I have to know what job I am into. So after I know all that, and then my capacity to be merged with the load that is left to me, and then I have to measure my capacity. Is I there should any do that. information about your ministry? No idea, absolutely no idea. Are no you idea. expecting some ministry? Nothing. I was not expecting to be in the ministry. You know that. And BJP also opened the account in like a Trishul as Yeah, that is there. So what is your strategy to, being an MP or being a minister? Not as a minister, as an MP, I have to work up to the fruitful possibilities of spreading BJP tentacles in the south. Lastly, sir, 400 claims didn't happen. So what is your strategy if, Kerala election, Kerala... Wait for some more time. We will grow and then we'll fetch 400 plus. Wait. त्रिशूर जीतने के लिए मोदी ने गारंटी दी थी कि त्रिशूर का एमपी केंद्र सरकार में बनेगा। त्रिशूर के लोगों ने मोदी की गारंटी पर भरोसा करके गोपी को संसद भेज दिया, लेकिन गोपी ही मोदी की गारंटी पर पानी फेरने पर अड़े गए हैं। सुरेश गोपी का दावा है कि मंत्री बनाने का फैसला पीएम मोदी का था। उन्होंने फोन किया था और घर आने को कहा था। मैंने वही किया जो उन्होंने किया, मैंने कुछ भी नहीं मांगा था। 65 साल के सुरेश गोपी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार हैं। फिल्म स्टारडम से राजनीति और बीजेपी में आने का रास्ता खुला। उन्होंने बाल कलाकार बनके फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ली थी। आज वो सुपरस्टार कहे जाते हैं। 3 दशक में 250 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं। इंडस्ट्री में डिमांड बनी हुई है। गोपी कह रहे हैं कि फिल्में उनके लिए पैशन है जिसे वो छोड़ नहीं सकते। चुनाव जीतने और मंत्री बनने से पहले से उनकी कई फिल्में पाइपलाइन में हैं, जिसे किसी भी कीमत पर पूरा करना है। Today's celebration is only a kickoff. So there are lots of things to be revealed. I have to know what job I am into. So after I know all that, and then my capacity to be merged with the load that is left to me, and then I have to measure my capacity. Is I there should any do that. information about your ministry? No idea, absolutely no idea. Are No you idea. expecting some ministry? Nothing. I was not expecting to be in the ministry.
You know that. And BJP also opened the account in like a Trishul. Yeah, that is there. So what is your strategy to, being an MP or being a minister? Not as a minister, as an MP, I have to work up to the fruitful possibilities of spreading BJP tentacles in the south. Last year, sir, 400 claims didn't happen. So what is your strategy if, Kerala election, Kerala Assembly Wait for some more time. We will grow and then we'll fetch 400 plus. केरल में अरसे से जमने की कोशिश कर रहे बीजेपी को ऐसा फेस चाहिए था जो भीड़ के लिए मैग्नेट का काम करे। एक्टर सुरेश गोपी में ये वाली क्वालिटी भी थी। सुरेश गोपी पर मोदी की बहुत पहले से नजर थी। केरल में जब बीजेपी जीरो थी तब 2016 में बीजेपी के टिकट पर सुरेश गोपी को राज्यसभा सांसद बनाया गया था। 2022 में टर्म पूरा हुआ तो उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया गया। सुरेश गोपी दमखम के साथ चुनाव लड़कर सांसद बन गए, लेकिन गोपी के जरिए केरल में जमने के प्लान में ठीक ठाक पलीता लगता हुआ दिख रहा है। गलती से हुई मिस्टेक से ठीक ठाक किरकिरी हो रही है। सुरेश गोपी केरल के अलझप्पा के रहने वाले हैं। बीजेपी ने उनके लिए त्रिशूर सीट चुनी थी। सुरेश गोपी की इमेज और मोदी की मेहनत त्रिशूर सीट बीजेपी ने कांग्रेस से छीनी। इस चुनाव में गोपी ने त्रिकोणीय मुकाबले में सीपीआई के दिग्गज वीएस सुनील कुमार और कांग्रेस के मुरलीधरन को 74,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। लोकसभा सीट तो बहाना था, केरल में बीजेपी को पैर परसाना था। चुनाव जीतने वाली सुरेश गोपी के साथ केरल से जॉर्ज कुरियन को भी राज्य मंत्री बनाया गया है, जो सांसद नहीं है। केरल में दो बड़े प्लान के तहत ही मोदी सरकार के दो हाई प्रोफाइल मंत्री राजीव चंद्रशेखर को शशि थरूर के खिलाफ तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ाया था, लेकिन राजीव थरूर से चुनाव हार बैठे। लगता नहीं है कि वो राजनीति में और लंबी पारी खेलने के मूड में है। अब सुरेश गोपी की पलटी से बीजेपी के केरल मिशन को डबल झटका लगा है। बाकी आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या सुरेश गोपी अपना फैसला बदल सकते हैं या फिर नहीं बदलेंगे? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।